Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to second lecture on algebra. Course code is MTH376. Okay, let's start with our second lecture. Okay. First, what we have done in the first lecture. So we defined what is a set. Okay, so set is just a collection of objects. Now you are aware. And then I also gave you some examples of very important number sets. For example, the set of natural numbers, the set of whole numbers, integers, and the set of rational numbers, real numbers, and complex numbers. Okay, so these are some very important number sets. Okay, then we defined what is a function. Okay, so a function is a rule. So a function f from a to b is a rule that assigns to each element in the set A a unique element in the set B. Okay, so as you might remember, the set A is called the domain and the set B is called the codomain of this function. Okay, so how do we write it mathematically? Well, a function f from A to B, so from domain to codomain, is defined as follows mathematically. So for every A in the set A, you should have f of A should belong to the codomain. Okay, so right here, so f of A for every f of A, for every A in the set A, f of A should belong to the set B. Okay, so second condition is, so there are of course two conditions in the function. So for every element it should assign an element in B and the element should be unique. So first condition here guarantees that for every element of A there is an element in B. Okay, then how do we guarantee uniqueness? Well, if you have two same elements in the domain set, then their image under F should also be same. So if two elements are same in A, then their image in B should also be same under F. In this way we say that the function is has an image for every single element and that image is unique. So function f is a rule that assigns to each element in A unique element in B. Okay, then I probably gave you some examples of functions. So maybe just to quickly look at one of them. So a function, let's say f from real numbers R to real numbers could be defined like this. So f of x is equal to, let's say, x square. F of x is equal to x square. So for every real number there is a real number x square, right? So maybe you want to say, so what is f of 2? So that's 2 square, so that would be 4. Okay, and similarly you can find the image of every single element of real number. So you probably know from your elementary classes that square exists for every single number. So then this function is defined for all real numbers, and you should also be aware that square of a number, a real number, is unique. Okay, so when the square is unique, then this function, this rule assigns to each element in R A, I mean this R, so this is your A here, a unique element in this R, so that's B. Okay, very good. Okay, so that's some recap of what we have done in the first lecture. So not a lot, so very basic things. Okay, so let's now study a very special kind of functions. Okay, so the functions which we will be using again and again in whole of this course in algebra. So a special type of function which I'll be calling a binary operation. So what is a binary operation? Well, a binary operation, let's say star on a set S, is a rule.
which assigns to every ordered pair of elements of S an element in S. Okay, so what does this mean? What does this statement mean? Okay, so you have a binary operation which is a rule. It's a rule on a set S. So maybe you want to write down that star is a rule on the set S. So it takes element from S, and not just one element, every ordered pair of elements. Okay, so it's not one element, pair is two, right? Pair is two. So it takes two elements of the set S. I will just write S cross S, and I'll tell you what it means. So it takes two elements from the set S and maps them onto another element of the same set, or maybe just an element of the same set. Okay. Now there are a couple of things important in this sentence. इस सेंटेंस में दो तीन चीज़ें जो हैं वो अहम हैं. पहली बात तो ये हम कह रहे हैं कि पेयर ऑफ एलिमेंट्स, दो एलिमेंट होंगे तो फिर हमारा जो है ऑपरेशन डिफाइन होगा. दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो पेयर है वो ऑर्डर्ड होना चाहिए. इसका क्या मतलब है? और इसके साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि उसी सेट का एक एलिमेंट उस ऑर्डर्ड पेयर को असाइन करे. अच्छा, अब इसको कुछ हम यूं देखते हैं. अब ये एक फंक्शन है S क्रॉस X मैंने यहाँ लिखा. तो S क्रॉस X का क्या मतलब है? तो S क्रॉस S को हम यूं डिफाइन करते हैं. S क्रॉस S को हम यूं डिफाइन करते हैं. हम एलिमेंट्स लेते हैं S में से, एक और एलिमेंट लेते हैं S में से, X और Y दोनों एलिमेंट S के हैं, और उनको हम एक ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखते हैं. जैसे X Y दोनों जो हैं वो S में से हैं, बिलोंग्स टू S. तो हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स लेते हैं S में से और उनको एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर आप इसको समझना चाहें तो शायद आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में पता हो, R2 के बारे में. तो आपने देखा होगा कि हमारा जो स्पेस है वो 3 डायमेंशनल है, उसको हम R3 कहते हैं. फिर उस स्पेस में प्लेन्स हैं. जैसे अगर आप एक रूम लें तो वो एक स्पेस है, वो 3 डायमेंशनल है, और उस रूम में एक वॉल जो है वो 2 डायमेंशनल है. तो 2 डायमेंशनल स्पेस जो है हमारी है उसको हम कहते हैं R2. वो क्या है? वो बेसिकली है R क्रॉस R. ठीक है, R क्रॉस R. इसकी आपने देखा होगा शायद कि ये कैसे हम लिखते हैं. दो एलिमेंट्स लेते हैं हम R में से और उनको एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं. तो X और Y दोनों जो हैं वो R के एलिमेंट्स हैं. X और Y दोनों R के एलिमेंट्स हैं. तो हमारा जो R2 है वो R क्रॉस R है. इसी तरह सेम लाइंस के ऊपर हम S क्रॉस S डिफाइन करते हैं. S हमारा कोई भी सेट है, वो R भी हो सकता है और Z भी हो सकता है, नेचुरल नंबर्स भी हो सकता है, कोई भी और सेट हो सकता है, फाइनाइट सेट भी हो सकता है. तो उसका हम ये प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं S क्रॉस S. वो प्रोडक्ट क्या है? सारे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं हमने S में से, S क्रॉस S. सो दो एलिमेंट लेने हैं, कोई से दो एलिमेंट हम S क्रॉस S में से लेने हैं, और उसको हम उन सब ऑर्डर्ड पेयर्स को एक सेट में रखें तो वो S क्रॉस S बनता है. अच्छा, अब ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है? ऑर्डर्ड पेयर का ये मतलब है कि आप लेते हैं एक पेयर, लेट्स से रियल नंबर्स में से. तो 2 एक रियल नंबर है, 1 भी एक रियल नंबर. ठीक है, ये एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स है. अब क्या ये पेयर ऑफ एलिमेंट्स इस पेयर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर है? सो 2 1 1 2 के बराबर है. ये 2 1 1 2 के बराबर नहीं है. तो अब पहले जो पेयर है उसमें 2 1 से बड़ा है और दूसरे में 1 जो है वो पहले है, 2 बाद में है, 1 2 से छोटा है. ये दोनों पेयर सेम नहीं है. अगर हम ऑर्डर्ड पेयर्स ना ले रहे होते तो ये दोनों पेयर सेम होते अगर हमने ऑर्डर पहले से डिफाइन ना किया होता. तो
आप ऑर्डर को बाद में आपको शायद किसी कोर्स में ये डिफाइन भी कर दिया जाए, लेकिन अभी आप ऑर्डर को यूं ही समझें कि ऑर्डर पेयर ये होता है कि 2 1 और 1 2 या 3 2 और 2 3 आपस में सेम नहीं है। तो दो ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो सेम होंगे जब उसके दोनों एलिमेंट सेम हो। तो ए बी ए के इक्वल होगा अगर ए और बी दोनों सेम होंगे। तो ये हमारा इस यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि S क्रॉस S में से एलिमेंट्स लेने हैं और उनको S के ऊपर मैप करना है। ठीक है, और ये मतलब बाइनरी ऑपरेशन हमने ऊपर डिफाइन किया कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट S इज अ रूल which assigns to every ordered pair of elements of S an element in S। अब मैं कह रहा हूं यहां पे an element in S, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई और एलिमेंट। अब वो जो एलिमेंट इनको असाइन हो रहा है वो इन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। जैसे हम स्टार 2 1 के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी हो सकता है कि स्टार ऑफ 2 1 जो है वो 2 भी हो जाए या 1 हो जाए। तो हम ये नहीं कह रहे कि कोई दूसरा इनमें इन दोनों के अलावा कोई एलिमेंट असाइन करे, इनमें से भी कोई हो सकता है और कोई और भी हो सकता है उसी सेट के अंदर, उस सेट के बाहर नहीं हो सकता। हम इसकी मजीद एग्जांपल्स देखेंगे तो इंशाल्लाह मजीद क्लियर हो जाएगा। अब इसमें हम एक और बात कर रहे हैं, इसको इसी चीज को हमने मैथमेटिकली या प्रिसाइजली लिखा है। अब आप अगर फंक्शन की डेफिनेशन को, ये जो डेफिनेशन मैंने ऊपर दी है इससे कंपेयर करें तो उसी कंपैरिजन को मैंने नीचे लिखा है कि अगर हम इसको ज्यादा प्रिसाइजली या मैथमेटिकली कहना चाहें तो ये होगा कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन होगा अगर स्टार फ्रॉम S क्रॉस S टू S इज अ फंक्शन। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रूल है जो डोमेन जो यहाँ पे S क्रॉस S है, सो डोमेन में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो जो डोमेन के एलिमेंट्स को यूनिक एलिमेंट को डोमेन में असाइन करता है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन जो है ये भी एक फंक्शन होता है, लेकिन ये फंक्शन थोड़ा स्पेशल काइंड का है। वो इसमें स्पेशल ये है कि ये फंक्शन S क्रॉस S के एलिमेंट्स को S के ऊपर ही मैप करता है। इन जनरल फंक्शंस में डोमेन कुछ और होती है, को डोमेन कुछ और होती है। तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन जो है वो S क्रॉस S है, ये हमारे पास फिक्स्ड है। हमें S नोन होगा, एक सेट नोन होगा, उसके ऊपर हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। तो स्टार जो है वो S क्रॉस S से S के ऊपर हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये स्टार जैसे आपके यहाँ लिखा हुआ है कि ये स्टार जो है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है जब ये स्टार S क्रॉस S से S तक एक फंक्शन होगा। स्टार बाइनरी ऑपरेशन होगा अगर कोई सेट S हो हमारे पास और स्टार S क्रॉस S से S एक फंक्शन होगा तो हम स्टार को बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशंस कहाँ से आते हैं और हमें ये क्यों चाहिए और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम स्टार डिफाइन कर रहे हैं। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन से ऐसे फंक्शंस या रूल हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं जो दो एलिमेंट्स को लेके एक एलिमेंट उसी सेट के ऊपर जो है वो मैप कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे आपने एडिशन हम नंबर्स की करते आए हैं, इंटीजर्स की एडिशन करते आए हैं, हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं, होल नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं और बाकी नंबर्स को भी हम ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हम लेट्स से शुरू करते हैं इस सेट के अलावा, बल्कि इवन हम नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं। तो हमने नेचुरल नंबर्स लिख दिए। नेचुरल नंबर्स आपको अब पता होगा वो क्या होते हैं जी। नंबर्स होते हैं 1 2 3 और इससे भी बड़े सारे नंबर इस सेट में आते हैं। अब नेचुरल नंबर्स के ऊपर हम एडिशन कैसे डिफाइन करते हैं। अब एडिशन है जी 1 + 2, ठीक है। अब ये दो एलिमेंट्स होने चाहिए, अदरवाइज एडिशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो 1 2 के ऊपर मैं स्टार लेट्स से अप्लाई कर रहा हूं, तो ये एडिशन जो है वो दो एलिमेंट्स के लिए हो सकती है। अगर दो एलिमेंट्स नहीं होंगे तो ऑफ कोर्स एडिशन नहीं होगी। तो सो डेफिनेटली हमें नेचुरल नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। तो ये जो एलिमेंट 1 2 है ये आ रहा है नेचुरल नंबर्स क्रॉस नेचुरल नंबर से, राइट। सो हमारा जो ये स्टार है ये अब डिफाइन हो रहा है नेचुरल नंबर्स क्रॉस नेचुरल नंबर्स पे। हमारा स्टार डिफाइन हो रहा है नेचुरल नंबर्स क्रॉस नेचुरल नंबर से। अच्छा,
अब 1 2 के ऊपर मैंने स्टार अप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 1 + 2, सो ये आपको पता है ये 3 होता है। अब 3 फिर नेचुरल नंबर्स में है, राइट। अब मैंने क्या किया है, एडिशन अप्लाई किया नेचुरल नंबर्स के ऊपर, सो 2 नेचुरल नंबर्स चाहिए, n क्रॉस n में से आएंगे, और 2 नेचुरल नंबर्स हमने लिए, तो जब हमने उनको ऐड किया, जब हमने उनको ऐड किया तो हमारे पास 3 आया, और वो एक और नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब आप जो भी 2 नेचुरल नंबर्स ऐड करेंगे आपके पास एक नेचुरल नंबर आएगा, और हर 2 नेचुरल नंबर्स के लिए एक नेचुरल के सम के लिए एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है इसको देखना कि स्टार जो है जब हम एडिशन के थ्रू डिफाइन करते हैं तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि ये एक फंक्शन है। अच्छा, अब जब मैंने पहले कहा था कि हम ये नहीं कह रहे कि ये जो इनका सम है या जो स्टार अप्लाई करें वो एक तीसरा एलिमेंट हो, इन दोनों में से भी कोई हो सकता है। जैसे मैं ये स्टार अप्लाई करूं नेचुरल नंबर्स में 0 2 पे, ठीक है। अब 0 2 पे मैंने स्टार अप्लाई किया, ये क्या हो रहा है जी, 0 + 2, एडिशन ले रहा हूं मैं, तो 0 + 2 आपको पता है ये 2 के बराबर होता है। तो अब 2 जो है वो एक नेचुरल नंबर है, तो ये एडिशन डिफाइंड है, लेकिन ये जो रिजल्ट है ये इन दोनों में से ही एक एलिमेंट है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास जब हम स्टार अप्लाई करें या कोई बाइनरी ऑपरेशन लें तो उसका रिजल्ट कोई और एलिमेंट आए, इन दोनों में से भी कोई हो सकता है। अच्छा, अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि एडिशन जो है वो नेचुरल नंबर्स पे एक बाइनरी ऑपरेशन बनाती है, ठीक है। इसी तरह नीचे हमने ये कहा है कि इंटीजर्स के ऊपर भी, जो हमारे इंटीजर्स हैं उनके ऊपर, रैशनल नंबर्स के ऊपर, रियल नंबर्स के ऊपर, और इसके अलावा भी काफी सेट्स यहाँ लिखे हुए हैं जिनके ऊपर एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, जैसे होल नंबर्स के ऊपर भी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर भी, और बाकी जो फाइनाइट नंबर्स के अगर आप सेट्स डिफाइन करें उसमें भी आप देख सकते हैं कुछ केसेस में एडिशन बाइनरी ऑपरेशन होगा और कुछ में नहीं होगा। अच्छा, अब चलें हम इंटीजर्स की एग्जांपल को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स में हमें पता है कि इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, 0 होता है, +1 होता है, और -1 भी होता है। हमारे पास +2 भी होता है और इसके साथ साथ -2 भी होता है, और इसी तरह +3 होता है और -3 भी होता है, और इसके अलावा भी सारे नेगेटिव पॉजिटिव होल नंबर्स हमारे पास इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर हम कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना चाहें, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एडिशन जो है इसके ऊपर भी बाइनरी ऑपरेशन बनाती है। अच्छा, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमने 2 नंबर्स लेने हैं, 2 इंटीजर्स, लेट्स से हम ले लेते हैं -2 और उसमें ऐड कर देते हैं 5, ठीक है। अब -2 + 5 हमने किया। अब ये क्या है, ये हम कर रहे हैं जी स्टार अप्लाई कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर किस पे, -2 और 5 के ऊपर, -2 और 5 के ऊपर हम ये एडिशन अप्लाई कर रहे हैं, स्टार अप्लाई कर रहे हैं। स्टार हमारे पास एडिशन है इंटीजर्स के ऊपर, तो हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है 3, ठीक है। अब जो रिजल्ट है वो भी एक इंटीजर है, ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर लिया, इंटीजर क्रॉस इंटीजर के ऊपर, और हमारे पास रिजल्ट जो है वो एक और इंटीजर आ गया। इसका मतलब ये है कि स्टार जब जो है हम इंटीजर्स के ऊपर जब डिफाइन करते हैं तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि ये कोई से 2 इंटीजर्स को एक इंटीजर असाइन करता है, और जब भी 2 इंटीजर्स को आप ऐड करेंगे तो उनका आंसर एक ही इंटीजर आएगा, एक से ज्यादा इंटीजर्स नहीं आएंगे, तो इसलिए ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरह आप एज एन एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं कि रैशनल नंबर्स को जब ऐड करें आप तो आंसर एक रैशनल नंबर आता है, और वो रैशनल नंबर भी यूनिक होता है। इसी तरह रियल नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास आंसर तब भी रियल नंबर आता है। तो जो एडिशन है, एडिशन का जो फंक्शन है वो 2 एलिमेंट्स के लिए ऊपर अप्लाई होता है, और वो इन सब सेट्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन बनाता है। बाइनरी का शायद आपको मतलब पता हो, बाइनरी 2 को कहते हैं।
तो ये 2 इसलिए बाइनरी रिलेशन या ऑपरेशन हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि ये 2 एलिमेंट्स के लिए ऊपर अप्लाई होता है। 2 एलिमेंट्स को जब ऐड करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास आंसर एक एलिमेंट आता है उसी सेट का, अगर स्टार हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन हो। अच्छा, अब इसकी मजीद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब इस एग्जांपल में मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप स्टार लें मल्टीप्लिकेशन को, अब मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कैसे डिफाइन करते हैं, इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आंसर आता है, और इसी तरह आप मजीद इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आपने मल्टीप्लिकेशन ली इंटीजर्स के ऊपर, तो मैं यहाँ क्लेम कर रहा हूँ कि जो मल्टीप्लिकेशन है इंटीजर्स की वो एक बाइनरी ऑपरेशन बनाती है। इसी तरह नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स के ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन बनाती है। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। फिर वही सेट फॉर एग्जांपल लेके हम देखते हैं कि हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या हो रहा है। सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या हो रहा है, अब हमने स्टार लेना है। स्टार हमारा मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, और स्टार होना चाहिए z क्रॉस z से z पे, ठीक है। जब भी 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें हमारे पास आंसर भी एक इंटीजर आना चाहिए। अच्छा, इसको देखते हैं कि कोई ऑर्डर्ड पेयर लें इंटीजर्स का, लेट्स से 2 लें और -3 लें, ठीक है। अब स्टार क्या कर रहा है, स्टार मल्टीप्लाई कर रहा है। जब इनके ऊपर हम स्टार अप्लाई करें तो वो क्या कर रहा है जी, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 -6 होता है। अच्छा, अब ये जो ऑपरेशन है ये हमने 2 इंटीजर्स के ऊपर डिफाइन किया है और आंसर भी एक इंटीजर आया है। तो और ये 2 इंटीजर्स को जब मल्टीप्लाई करें तो एक ही आंसर आता है, एक से ज्यादा आंसर नहीं आते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये जो स्टार है इंटीजर्स के ऊपर ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरह आप इसको अगर लेकर चलना चाहें तो इसी को आप लेट्स से आप रैशनल नंबर्स के ऊपर लेके चलें, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स के ऊपर स्टार आपने डिफाइन किया कैसे कि 2 रैशनल नंबर्स अगर आपके पास हों तो उनको जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी एक रैशनल नंबर आए। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपने 2 एलिमेंट लेने हैं रैशनल नंबर से। अलग से रैशनल नंबर्स आपको पता है कि फ्रैक्शंस की फॉर्म में होते हैं, डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर होता है, न्यूमरेटर भी एक इंटीजर होता है, और डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, 2 इंटीजर हमने लेने, 2 रैशनल नंबर्स लेने हमने, 2 रैशनल नंबर्स लेट्स से आप लें 1/2 और 3/2, ठीक है। ये दोनों डेफिनेटली रैशनल नंबर्स हैं। इनके ऊपर जब आप स्टार अप्लाई करें तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 टाइम्स 3/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4। अब ये ऑपरेशन क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन क्या कर रही है, 2 रैशनल नंबर्स को लिया और उनके ऊपर जब बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया तो आंसर भी एक रैशनल नंबर आएगा, ठीक है, आंसर भी एक रैशनल नंबर आएगा। तो ये ऑपरेशन जो है वो Q क्रॉस Q से Q पे है। जब 2 रैशनल नंबर्स को अप्लाई करें तो आंसर एक यूनिक रैशनल नंबर आता है, एक से ज्यादा नहीं आ सकते। तो ये आपके पास स्टार जो है रैशनल नंबर्स के ऊपर भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरह आप कोई सभी और नंबर लेके ट्राई कर सकते हैं। तो इसको आप इसी तरह आप अगर आप ट्राई करना चाहें तो नेचुरल नंबर्स और रियल नंबर्स के लिए भी आप ट्राई कीजिएगा कि हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है ये इन दोनों के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन बनाता है। अच्छा, हम आगे चलते हैं थोड़ा और कुछ मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, अब अभी तक जितने भी हमने सेट पढ़े हैं देखें इस बाइनरी ऑपरेशंस के अंदर, वो सारे नंबर के सेट थे। अब हम कह रहे हैं कि चलें एक फंक्शंस के सेट लेते हैं। फंक्शन का सेट मैं क्या कह रहा हूँ कि सेट S जो है उसमें सारे फंक्शन हैं f from R to R such that f is a function, ठीक है। तो f जो है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये मैं जस्ट कह रहा हूँ, ठीक है।
तो हमने लेट्स से फंक्शन जो हैं उनको r से r पे ही डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास सारे फंक्शन जो हैं रियल नंबर से जो रियल नंबर पे जा रहे हैं वो मैंने इस सेट में रखे हैं। एक और कंडीशन हमने लगाई है कि वो जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होते हैं। इस कंडीशन का क्या मतलब है, अब आप ये देखें, लेट्स से मैं r से r एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, f of x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स और स्क्वायर रूट एक्स। अब इस फंक्शन का क्या प्रॉब्लम है, इस फंक्शन का प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ पॉजिटिव या रियल नंबर्स या जीरो के लिए डिफाइन है। जब भी आप इसमें नेगेटिव रियल नंबर लेंगे तो ये हमारे पास फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा रियल नंबर्स के अंदर। तो अब हम ऐसा फंक्शन जो है वो इस सेट के अंदर नहीं ले रहे, वो फंक्शन जो है वो सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होना चाहिए। तो ये मैं मतलब ले रहा हूँ जब मैं ये कहता हूँ कि जो फंक्शन है वो सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होना चाहिए। अब आप इसमें से कोई दो फंक्शन लें, लेट्स से f और g, ठीक है। अब इन दोनों को आप ऐड करें। सो ऐड हम कैसे करते हैं फंक्शंस को, हम ये कहते हैं कि f प्लस जी ऑफ एक्स जो है ना वो f ऑफ x प्लस जी ऑफ एक्स होना चाहिए, ठीक है। अब स्टार मेरा क्या है, स्टार जो है वो f और g के ऊपर अप्लाई हो रहा है और वो करता क्या है, वो इन दोनों फंक्शंस को जस्ट ऐड कर देता है। अब इसको मैं थोड़ा सा अगर इलिस्ट्रेट करूं तो मेरे पास लेट्स से रियल नंबर से रियल नंबर पे दो फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स हो और दूसरा मेरे पास फंक्शन हो लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो आसान सा फंक्शन है। अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ। मैं ऐड कैसे करूँगा, मेरे पास आ जाएगा एफ लेट्स से f प्लस जी ऑफ एक्स, मेरे पास आ जाएगा f ऑफ x प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इस दोनों का f कह दिया, आप इसको g कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हमारे पास ये फंक्शन का आंसर। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब मैं जब किसी भी पॉइंट के ऊपर इन फंक्शंस की वैल्यू निकालना चाहूँ, लेट्स से f प्लस जी ऑफ 1, तो वो क्या होगा, वो होगा 1 स्क्वायर प्लस 1, सो दैट 1 स्क्वायर 1 ही होता है और 1 प्लस 1 जो है वो 2 हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह ये हम फंक्शंस की एडिशन डिफाइन करते हैं। अब जब दो रियल वैल्यूड फंक्शंस जो सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन हो उनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन आएगा और वो भी सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होगा। तो इस तरह जो हम स्टार जो हम एडिशन ऑफ फंक्शंस लेते हैं ये हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन बनाता है इस सेट S के ऊपर। अच्छा, अब इसी में मैंने साथ में ये कहा है कि प्रोडक्ट जो है या मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन जो है वो भी हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन बनाती है। अब मल्टीप्लिकेशन आप कैसे डिफाइन करते हैं, अब आपके पास दो लेट्स से फंक्शन हो रियल वैल्यूड, हमारे पास एक फंक्शन है लेट्स से f फ्रॉम r टू r और मैं डिफाइन कर देता हूँ लेट्स से f ऑफ x इज इक्वल टू, फिर मैं एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ और मैं दूसरा फंक्शन ले लेता हूँ g फ्रॉम r टू r और मैं इसको कह देता हूँ लेट्स से g जो है वो है x क्यूब। अब ये दोनों फंक्शंस जो हैं ये सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है। तो मैं इनको जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो f टाइम्स g जो है वो हमारे पास आएगा f टाइम्स g ऑफ x, जो हमारे पास आएगा वो है f ऑफ x टाइम्स g ऑफ x, ठीक है। अब इसके ऊपर आप अगर कोई किसी नंबर के ऊपर इस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो वो कैसे होगी f टाइम्स g ऑफ x, सो लेट्स से 1, वो हमारे पास होगी f ऑफ 1 टाइम्स g ऑफ 1। अब ये f ऑफ x टाइम्स g ऑफ x अगर मैं ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करूं तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर टाइम्स x क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 1 स्क्वायर टाइम्स 1 क्यूब। तो 1 का स्क्वायर जो है वो भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, तो ये हमारे पास सिर्फ 1 ही आ जाएगा।
तो अगर आप इसको किसी और नंबर के लिए ट्राई करना चाहें, लेट्स से f टाइम्स g, तो ये हमारे पास इन द एंड ये वैल्यू हमारे पास x5 आ जाएगी। आपको शायद आइडिया हो ही क्या होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा f टाइम्स g ऑफ 2, सो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टू द पावर 5। अब 2 टू द पावर 5 क्या होता है ये आपको पता होगा, ये 32 होता है। ठीक है, तो इस तरह आप इन दोनों फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर सकते हैं। अब f और g की जो मल्टीप्लिकेशन है वो x5 है, ये भी सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है। और जब आप दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर एक रियल वैल्यूड फंक्शन आएगा जो सब के सब रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होगा। और इसमें ये भी बात होगी कि ये जो फंक्शन है ये एक ही आएगा, यूनिक आएगा। ये नहीं हो सकता कि दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन से दो डिफरेंट फंक्शंस आ जाएं, एक ही फंक्शन आएगा हमारे पास। तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट जो फंक्शंस की ये हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन बनाती है। अब हमने कुछ एग्जांपल्स देखी जो बाइनरी ऑपरेशन हैं, राइट। हमारे पास एडिशन है जो इंटीजर्स के ऊपर, रियल नंबर्स के ऊपर, नेचुरल नंबर्स के ऊपर, होल नंबर्स के ऊपर जो है वो बाइनरी ऑपरेशन बनाती है। इसी तरह कुछ और सेट्स भी हैं जिनके ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशन बनाएगी। मल्टीप्लिकेशन जो है वो रियल नंबर्स के लिए और इंटीजर्स के लिए ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। और इसी तरह दूसरे सेट्स को भी आप देख सकते हैं। हमारे पास तीसरा हमने ये एग्जांपल देखी कि हमने सेट लिया एक फंक्शंस का। फंक्शंस के ऊपर हमें पता है कैलकुलस के कोर्स से कि हमारे पास फंक्शंस को हम ऐड भी कर सकते हैं, फंक्शंस को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और फंक्शंस को जब ऐड करते हैं तो आंसर भी एक फंक्शन आता है, और फंक्शंस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर एक फंक्शन आता है। और हमने फंक्शंस ख़ास किस्म के लिए हैं कि हमारे पास रियल वैल्यूड हों और वो सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन हों। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस जो है वो इस सेट के लिए एक बाइनरी ऑपरेशन बनाती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं बाइनरी ऑपरेशन जो हैं। अब आप शायद ये सोच रहे हो कि जितने भी हम ऑपरेशंस डिफाइन करते हैं वो फिर बाइनरी ऑपरेशन ही होंगे। ऐसा नहीं है, हमारे पास कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाते, और उनकी कुछ एग्जांपल्स ये हैं। नॉन एग्जांपल्स, ऐसे एग्जांपल्स जो बाइनरी ऑपरेशंस नहीं बनाती। अब हम ये देख रहे हैं पहले केस में सब्ट्रैक्शन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है नेचुरल नंबर्स के। इसका क्या मतलब है? सब्ट्रैक्शन आपको पता है क्या होती है, ये हम एक अरसे से करते आ रहे हैं कि जब आप दो नेचुरल नंबर्स लें उनको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो f मैंने यहाँ लिख दिया, आप स्टार लिख लें अगर आप स्टार लेना चाहें। तो स्टार जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे जाए, नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन होगा। और इसकी ख़ास बात क्या है कि स्टार जो है इसको जब हम दो नेचुरल नंबर्स को इसे लेट्स से a और b के ऊपर अप्लाई करें तो ये इनको सब्ट्रैक्ट कर दे। अच्छा, तो जब दो नेचुरल नंबर्स को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो आंसर एक नेचुरल नंबर आना चाहिए अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, अच्छा इसको देख लेते हैं। आपने दो नेचुरल नंबर्स लेट्स से लिए 5 और इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 4, तो हमारे पास आंसर 1 आया। एक नेचुरल नंबर है अभी तक तो ठीक है, तो फिर शायद ये भी बाइनरी ऑपरेशन हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इसलिए कि आप अगर लें 5 और एक और नेचुरल नंबर लें 7, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, अब आंसर आपके पास आ गया -2। अब -2 जो है वो तो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो बाइनरी ऑपरेशन की तो ये क्वालिटी है कि जब भी आप दो सेट के दो एलिमेंट्स लें उनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करें तो आपके पास एक और एलिमेंट उसी सेट का आना चाहिए, और वो एलिमेंट यूनिक भी होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता। अच्छा, इसी तरह अगर आप एक और एग्जांपल लेना चाहें इसी की, तो आप अगर 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 0 आ जाएगा। हमारी जो डेफिनेशन है नेचुरल नंबर्स की उसमें तो 0 है ही नहीं। तो इसी तरह ये एलिमेंट जो है ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमारा जो सब्ट्रैक्शन है, जो दो एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स के ऊपर, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाता। ये आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप इंटीजर्स का सेट लें तो उसके ऊपर जो हमारा सब्ट्रैक्शन है वो बाइनरी ऑपरेशन बनाएगा। अच्छा, इसी तरह आप डिवीजन लें, अगर
बाइनरी ऑपरेशन, जो इंटीजर्स हैं उनकी डिवीजन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसका क्या मतलब है? आपने बाइनरी ऑपरेशन लेना है दो इंटीजर्स के ऊपर, ए बी अब यहाँ पे इंटीजर्स हैं, और उनको आपने मैप करना है ए ओवर बी पे, ठीक है। अब इसमें तो बहुत सारी एग्जांपल्स आपको क्लियरली मिल सकती हैं। जैसे आपने 2 और 3 ले लिए, ठीक है, 2 और 3 के ऊपर स्टार अप्लाई करें तो आप क्या करें, ये आंसर आ जाएगा 2/3। अब इंटीजर्स में तो नेगेटिव पॉजिटिव होल नंबर होते हैं, +1 होता है, -1 होता है, +2 होता है, -2 होता है, लेकिन इस तरह के फ्रैक्शंस के तो कोई नंबर नहीं होते, तो इसलिए ये 2/3 जो है वो एक इंटीजर नहीं है। तो अगर हमारे पास दो इंटीजर्स का जो रिजल्ट है अंडर स्टार वो एक इंटीजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि स्टार जो है वो हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन जो है वो नेचुरल नंबर्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, होल नंबर्स के ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं, ये उस पर भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसी तरह आप डिवीजन अगर लेना चाहें तो ये इंटीजर्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसी तरह नेचुरल नंबर्स के ऊपर और भी बहुत सारे नंबर सेट्स के ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाता। अच्छा, अब आप एक और एग्जांपल हम देखते हैं फंक्शंस की, नंबर्स की। ये भी एग्जांपल है, ये हम ले रहे हैं रियल नंबर के ऊपर, रियल नंबर से रियल नंबर पे। अब ये जो अभी हमने दोनों देखे हैं ये इसलिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं थे कि इनका जो रिजल्ट है वो उसी सेट में नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें रिजल्ट जो है वो दोनों का, अगर x और y पॉजिटिव हों तो इनका रिजल्ट उसी सेट में आ जाएगा, लेकिन ये इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक, जब x और y नेगेटिव होंगे तो हमारे पास रिजल्ट एक रियल नंबर नहीं आएगा। अब मैं इस ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, ये जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है, रिजल्ट हमारे पास रियल नंबर नहीं आएगा। और दूसरा प्रॉब्लम इसमें यह है कि अगर जब रिजल्ट एग्जिस्ट करता है, लेट्स से इस ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं और यहाँ पे आपको इसकी थोड़ी सी एग्जांपल दूं, तो आप क्या करें, दो रियल नंबर लें 2 और 3, ठीक है, उनके ऊपर आपने स्टार अप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आया, प्लस माइनस 2 + 3 स्क्वायर रूट। अब आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। अच्छा, अब स्क्वायर रूट 5 ये एक रियल नंबर है, ये आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें किसी कैलकुलेटर से या आप हाथ से भी कर सकते हैं, तो ये एक आपके पास रियल नंबर आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है, तो ये एक रियल नंबर नहीं है। प्लस √5 और स्क्वायर रूट 5 एक रियल नंबर है, और माइनस स्क्वायर रूट 5 जो है वो एक और रियल नंबर है। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट रियल नंबर्स एक पेयर 2, 3 को असाइन कर रहा है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो यूनिक नहीं है, एक नहीं है। तो इस ऑपरेशन के अंदर दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये सब रियल नंबर्स के लिए डिफाइन भी नहीं है, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये इसकी वैल्यूज यूनिक नहीं है। अब एक और बाइनरी ऑपरेशन, एक और ऑपरेशन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ये वाला स्टार ऑफ x = x²। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का ऑपरेशन है। स्पेशल टाइप का ऑपरेशन किस तरह है कि आपने अगर आप बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एक नंबर पे नहीं, दो नंबर्स के ऊपर अप्लाई होता है। बाइनरी मींस 2, तो यहाँ पे जो है वो स्टार ऑफ x x², ठीक है, ये एक फंक्शन बनाएगा रियल नंबर से रियल नंबर्स पे, लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये दो नंबर्स के लिए ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। तो इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन कब होते हैं और कब नहीं होते, और हर फंक्शन डेफिनेटली एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। हर बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन जरूर होता है, लेकिन हर फंक्शन एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास फेल हो सकती हैं। तो ये कुछ आइडिया है बाइनरी ऑपरेशन का। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन एक सेट के ऊपर अगर आप डिफाइन करें तो वो एक फंक्शन है s क्रॉस s से s पे। तो वो दो एलिमेंट्स s में से लेता है, ऑर्डर्ड पेयर्स लेता है एलिमेंट्स के s में से, और उनको एक और एलिमेंट ऑफ s के ऊपर मैप करता है, ठीक है। अच्छा, अब बाइनरी ऑपरेशंस हमने डिफाइन कर लिए, हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया, हमने सेट भी डिफाइन कर लिया,
अब हमारा, अगर आप कोर्स आउटलाइन देखें किसी स्टेज के ऊपर, हमारा गोल ये है, और लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन भी किया था, कि हमारा इस कोर्स का मेन गोल ये है कि हमने ग्रुप्स को स्टडी करना है, हमने ग्रुप्स को स्टडी करना है। अब ग्रुप्स को हमने स्टडी करना है तो हम फंक्शंस और बाइनरी ऑपरेशंस को क्यों स्टडी कर रहे हैं? हमने फंक्शंस और बाइनरी ऑपरेशंस और सेट्स को यूज़ करके हमने ग्रुप की डेफिनेशन देनी है। तो हमारे पास जो ग्रुप की डेफिनेशन के लिए इंग्रेडिएंट हैं वो हम पूरे कर चुके हैं अब। तो अब हम ग्रुप की डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। लेकिन ग्रुप की डेफिनेशन पे जाने से पहले हम ये इसमें देख लेते हैं कि हमें ग्रुप्स क्यों चाहिए। अब अभी मैं थोड़ी सी आपको मोटिवेशन दूंगा ग्रुप्स को स्टडी करने की, लेकिन ग्रुप्स को स्टडी करने के लिए ये एक बहुत माइनर सी रीज़न है। हमारे पास इससे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं जिन रीजंस को लेके हम ग्रुप्स को स्टडी करते हैं। तो इंशाल्लाह जब मज़ीद हम इसमें कोर्स में डीप जाएंगे तो आपको मज़ीद रीजंस बताई जाएंगी कि हम ग्रुप्स को क्यों स्टडी करते हैं। अभी नेक्स्ट 2 स्लाइड्स के ऊपर आपको कुछ मोटिवेशन मैं दूंगा कि आप ग्रुप्स को हम क्यों स्टडी करेंगे। तो ग्रुप्स को डिफाइन करने की क्या मोटिवेशन है? आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया हुआ है आपकी बहुत अर्ली जो एलिमेंट्री स्कूल के ईयर्स हैं, उससे आपने इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करते रहे। अब आपने इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं? अब आपके पास एक इक्वेशन है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी, बहुत ही बेसिक इक्वेशन है, 5 + x = 2। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी आंसर बता रहे होंगे, x = -3। लेकिन हम इसमें थोड़ा प्रोसीजर को देखना चाहते हैं कि ये हमारे पास हो क्या रहा है। अब हम ये सारी चीज़ें कर भी सकते हैं या नहीं? ये हम करते तो रहे हैं, ऑफ कोर्स हम करते रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास पॉसिबल हैं और हम इनमें ये इक्वेशन हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब हम कैसे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को? हमने क्या किया, ये दोनों साइडों के ऊपर हमने -5 हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये आप इसको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहेंगे हम 5 को दूसरी साइड पे ले गए तो ये हमारा इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलें तो हमने क्या किया, -5 दोनों साइडों पे ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, क्या हम ये कर सकते हैं? अच्छा, फिर हमने क्या किया कि जब हमने -5 ऐड कर दिया तो हम चाहते हैं कि -5 और 5 को हम इकट्ठा करके हम जो है ये, चूंकि जब -5 और 5 ऐड होगा तो हमारे पास आंसर 0 होगा, तो हम ये ब्रैकेट को जो है ना यहाँ से उठा के चेंज करके हम -5 और 5 के अराउंड लगा देते हैं। तो हमने ये ब्रैकेट चेंज कर दी इस स्टेप में। तो क्या हम ये कर सकते हैं? ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारे पास -5 और 5 का आंसर जो है वो 0 आ गया, तो एडिशन जो है उसके अंदर ये आंसर 0 आ गया। तो इसकी भी हम कुछ थोड़ी सी डिटेल देखेंगे कि क्या ये आंसर हमेशा 0 आ सकता है और किन केसेस में ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास 3 मेजर स्टेप हैं यहाँ पे। एक तो हमने -5 ऐड कर दिया, हमने ब्रैकेट चेंज की और हमने ये कहा कि -5 और जो +5 है उसके जो आंसर है वो 0 आएगा। और फिर लास्ट में हमने ये यूज़ किया कि 0 जब हम किसी नंबर में ऐड करते हैं x में, तो हमारे पास आंसर जो है वो ही नंबर आता है। तो 0 + x जो है वो x के बराबर है, यहाँ पे हमने ये यूज़ किया। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर आप इसको कंफ्यूज ना हो, और तो मैं आपको एक पर्टिकुलर सेट में, हम कहते हैं ये हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है नेचुरल नंबर में। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में जितने भी नंबर यूज होंगे वो नेचुरल नंबर से आएंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि हम ये इक्वेशन सॉल्व करें नेचुरल नंबर्स में। तो क्या हम ये कर सकते हैं? अच्छा, हम पहले स्टेप पे जाते हैं। पहले स्टेप में क्या हो रहा है जी? पहले स्टेप में ये हो रहा है कि -5 हमने ऐड करना है इस इक्वेशन की दोनों साइडों पे, लेकिन -5 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो हम इस इक्वेशन में -5 कैसे लेके आएंगे? तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये कि नेचुरल नंबर में तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हम -5 ऐड ही नहीं कर सकते। इसी को हम थोड़ा सा आगे लेके चलें,
चलें -5 को एक सेकंड के लिए छोड़ देते हैं, -5 से भी नीचे जाते हैं तो -5 और 5 को हमने ऐड किया तो आंसर हम कहते हैं कि 0 आता है। चलें आंसर 0 आ गया, तो 0 तो फिर नेचुरल नंबर्स में नहीं है, तो 0 हम कहाँ से लाएंगे? ठीक है, तो अब 0 तो है नहीं। अब 0 के किसी नेचुरल नंबर में अगर आप ऐड करें, x एक नेचुरल नंबर हो, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? जब 0 नेचुरल नंबर्स में होगा तो हमें पता चलेगा ना क्या आंसर आएगा। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि नेचुरल नंबर्स में अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा, चलें हम एक एक करके इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। हम कहते हैं चलो नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं है तो इसमें 0 ऐड करके चलें किसी इससे थोड़े से बड़े सेट में हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलें इस इक्वेशन को हम होल नंबर्स में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब होल नंबर्स में इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। चलें ट्राई करते हैं। हमारे पास 0 तो आ गया, चलें 0 तो हमारे पास होल नंबर्स में है, ये आखिरी स्टेप जो है सेकंड लास्ट स्टेप, इसकी तो सेंस बन गई। अब फिर जो ऊपर से सेकंड स्टेप है या फर्स्ट स्टेप है उसमें आप अगर आए तो फिर हमने -5 ऐड करना है इस इक्वेशन में। अब -5 फिर होल नंबर्स में नहीं है, तो अब मतलब फिर प्रॉब्लम है। हम होल नंबर्स में भी इसका मतलब ये है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के लिए तो ये डेफिनेटली इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। अच्छा, तो हमारे पास 0 का प्रॉब्लम था और नेगेटिव नंबर्स का प्रॉब्लम था। चलें इससे थोड़े से बड़े सेट में जाके देखते हैं, इंटीजर्स का सेट, जो मतलब जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, उसमें हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, चलें हमने सबसे पहले -5 ऐड करना है, तो -5 इंटीजर्स में है। चलें पहला स्टेप तो रिजॉल्व हो गया। अब ये जो ब्रैकेट चेंजिंग का ऑपरेशन है ये जो है इंटीजर्स में, चलें आप अभी ये अज्यूम कर लें कि ये एग्जिस्ट करता है और ये करता भी है, तो इसकी हम डिटेल्स देखेंगे ये क्या है। तो ब्रैकेट हम चेंज कर सकते हैं इंटीजर्स में। तो -5 + 5 जो है वो 0 इसका आंसर आता है, वो भी इंटीजर है 0 भी, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। तो इसी तरह -5 + 2 जो है आंसर -3 है, -3 भी एक इंटीजर है। तो इसका मतलब ये है कि इंटीजर्स में हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर आप किसी सेट में फाइंड करना चाहते हैं, तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स एग्जिस्ट करने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे जितने भी इंटीजर्स हैं हमारे पास x, उनके लिए उनका नेगेटिव भी सेट के अंदर होना चाहिए अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा 0 जो है वो भी सेट के अंदर होना चाहिए, 0 भी सेट के अंदर होना चाहिए अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं। इसके साथ साथ अगर हमारे पास 3 इंटीजर हों, x + y + z, और तो हम ब्रैकेट भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, हम ब्रैकेट भी चेंज कर सकते हो। अगर हमारे पास ये 3 चीजें नहीं होंगी तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। 0 हमारे पास होना चाहिए, और 0 ऑफ कोर्स आपको पता है फिर 0 की ये खास प्रॉपर्टी है कि जब 0 को किसी नंबर में ऐड करें तो आंसर वही नंबर आता है। तो हमारे पास ये 3 चीजें होंगी किसी सेट में तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो इक्वेशन तो हम एलिमेंट्री स्कूल से हम सॉल्व करते आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो हम किसी ऐसे सेट में सॉल्व करते आ रहे हैं जिसमें ये सारी चीजें हैं, अदरवाइज हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास एक और एग्जांपल है। अब फिर एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसमें अब इक्वेशन ये है कि जो मेरे पास इक्वेशन है उसमें एडिशन कोई नहीं है लेकिन मल्टीप्लिकेशन मौजूद है। अब 2 × x = 3। अब आप ऑफ कोर्स आप कह रहे होंगे x जो है वो 3/2 के इक्वल है। अच्छा, चलें देखते हैं कि x जो है वो 3/2 के इक्वल इसका आंसर आता है या नहीं। अच्छा, फिर हम छोटे सेट से शुरू करते हैं, नेचुरल नंबर से।
क्या मैं इस इक्वेशन को नेचुरल नंबर में सॉल्व कर सकता हूँ? पहले स्टेप्स को ही लेके चलते हैं। पहले स्टेप में 1/2 आ गया, प्रॉब्लम ऑलरेडी आ गई है। नेचुरल नंबर्स में तो 1, 2, 3 होते हैं, 1/2 का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है नेचुरल नंबर्स में। अब हमारे पास प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब ये है कि ये 1/2 अगर किसी सेट में नहीं होगा तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह ये ब्रैकेट चेंज फिर हो रही है। आपने यहाँ देखा होगा कि हमने ये ब्रैकेट को फिर चेंज किया है, तो ये ब्रैकेट चेंज का ऑपरेशन जो है ये भी होना चाहिए। तो ये 1/2 एक प्रॉब्लम है हमारे पास। ये ब्रैकेट चेंज का ऑपरेशन अगर नहीं कर सकते हम तो भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं। और ये हमारे पास आंसर इसका 1 आ रहा है, आंसर 1 आ रहा है, राइट। तो हमारे पास 2 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है, तो हमें 1 की भी जरूरत है, राइट। तो हम नेचुरल नंबर्स में हमारे पास 1/2 नहीं है, हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते नेचुरल नंबर्स में। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। इससे बड़ा सेट लें होल नंबर्स का। अब होल नंबर्स में क्या प्रॉब्लम है? होल नंबर्स में भी 1/2 नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये सेट भी हम नहीं ले सकते। अच्छा, अब फिर कौन सा सेट ले सकते हैं? इससे बड़ा सेट लेके देखते हैं। अब उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं? अब इंटीजर्स का सेट ले लिया। इंटीजर्स के सेट में क्या हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? अच्छा, प्रॉब्लम फिर वही है। इंटीजर्स में तो पॉजिटिव नंबर होते हैं 1, 2, 3 और नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1, -2, -3 और 0 होता है, लेकिन इसमें कोई फ्रैक्शंस नहीं होती। तो इसका मतलब है 1/2 तो इस सेट में भी नहीं होगा। तो हम इस इक्वेशन को इस इंटीजर्स के सेट में भी नहीं हम सॉल्व कर सकते। अच्छा, तो इससे बड़ा सेट लेके देखते हैं क्यू। क्यू जो है हमारे पास सेट है इसका। अब क्यू में 1/2 मौजूद है, ठीक है। तो हमने क्यू जो है उसको उसमें से 1/2 उठाया और उसको यहां से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये 1/2 वाला मामला तो सॉर्ट आउट हो गया। तो इसका मतलब है अगर 1/2 सेट में नहीं है, यहाँ पे हमारे पास नंबर 2 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1/2 सेट में नहीं है, तो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। क्यू में 1/2 है, चलें ये मामला हमारा सॉर्ट आउट हो गया। तो अब ब्रैकेट चेंज हम चलें ये इसको ज्यूम कर लेते हैं और ये ट्रू भी है कि हम ये ब्रैकेट चेंज का ऑपरेशन जो है ये रेशनल नंबर्स में कर सकते हैं। सो 2 टाइम्स 1/2 हमने लिख दिया और ये 1 के इक्वल है, ठीक है। चलें हमारे पास 1 आ गया। 1 अब रैशनल नंबर्स में है, 1 हमारे पास रैशनल नंबर्स में है, क्योंकि 1 जो है वो 1 को आप लिख सकते हैं 1/1। अब 1 भी एक इंटीजर है और 1 डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर है, तो ये हमारे पास p/q इंटीजर ओवर इंटीजर की फॉर्म में है, तो ये एक रैशनल नंबर है। तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 1 आ गया। तो ये हमारे पास 1 भी रैशनल नंबर्स में मौजूद है, तो हमारे पास जो है इक्वेशन हम इसको सॉल्व कर लिया। इसका मतलब ये है कि रैशनल नंबर्स के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें इस इक्वेशन का तो सॉर्ट आउट हो गया। अब इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या सारी इक्वेशंस इस टाइप की जो हैं उसको हम रैशनल नंबर्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है जिसको हम लेटर ऑन आंसर करेंगे। तो इन जनरल अगर मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज करूं तो इस तरह की इक्वेशंस को हम किसी पर्टिकुलर सेट के अंदर सॉल्व कर सकेंगे जब हमारे पास सारे x के लिए 1/x जो है वो भी सेट में मौजूद हो, वो भी सेट में मौजूद हो। अगर s हमारे पास सेट है, हमारे पास सेट S है जिसमें हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो अगर सारे सेट के लिए 1/x सेट में मौजूद नहीं होगा तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह ये ब्रैकेट चेंज का जो ऑपरेशन है ये मौजूद होना चाहिए। ब्रैकेट चेंज का ऑपरेशन हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हों x और y और z, तो हम उनमें ये ब्रैकेट चेंज का जो ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। तो x y टाइम्स z, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नंबर्स हैं x और 1/x, इनकी खास बात यह है कि जब हम x को 1/x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आता है, ठीक है।
तो हमारे पास 1 जो है वो भी सेट में होना चाहिए। अगर 1 हमारे पास सेट में नहीं है तो हमारे पास हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब 1 जो है उसकी खास बात क्या है, 1 को जब हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर वही नंबर आता है। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों चीज़ों को, दोनों एग्जांपल्स जो हैं हमारे पास, जो आपने एडिशन वाली इक्वेशन को सॉल्व किया और अब आपने मल्टीप्लिकेशन वाली इक्वेशन को सॉल्व किया, इन दोनों को अगर आपस में हम कंपेयर करें तो हमें कुछ आइडिया होता है कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ये हैं कि हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहते हैं और हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होना चाहिए, हम इसको एलिमेंट्री स्कूल से सॉल्व करते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी ये बात नहीं की कि लीनियर इक्वेशंस को हमने किसी पर्टिकुलर सेट में सॉल्व करना है। हम लीनियर इक्वेशन का जस्ट सॉल्यूशन मतलब हमने दे दिया, लेकिन वो किस सेट में सॉल्यूशन है। अच्छा, तो अब जब हम बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है किसी पर्टिकुलर सेट में, तो मैंने स्टार्ट किया जैसे नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया, होल नंबर से स्टार्ट किया और इंटीजर से स्टार्ट किया। इन दिस केस में इन सब में ये इक्वेशन इन तमाम सेट्स में तो सॉल्व हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फंडामेंटल चीज़ें चाहिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो मौजूद नहीं है। और वो फंडामेंटल चीज़ें क्या हैं, अगर मैं आपको पिछली स्लाइड पे दोबारा लेके चलूँ तो वो फंडामेंटल चीज़ें क्या हैं कि सारे x के लिए इस मल्टीप्लिकेशन के केस में एक ऐसा -x होना चाहिए, सारे x के लिए एक -x होना चाहिए सच दैट जब हम इन दोनों को ऐड करें तो आंसर 0 आए। ठीक है, आंसर हमारे पास 0 आए, तो ये हमारे पास ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह आपके पास एक 0 होना चाहिए सेट में, और ये ब्रैकेट चेंज का जो ऑपरेशन है ये भी ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये ब्रैकेट चेंज का जो ऑपरेशन है ये दोनों में है और सिमिलर टाइप का। अब यहाँ पे 0 चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में 1 चाहिए, और x के लिए इस केस में -x चाहिए और उस केस में x के लिए 1/x चाहिए। लेकिन सिमिलर टाइप की चीज़ें हैं जो दोनों केसेस में इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए चाहिए। अगर वो हमारे पास नहीं होंगी तो हमारे पास इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। अच्छा, अब इसी मोटिवेशन को लेके कि हम जो इक्वेशंस हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन हम इनको जस्ट सॉल्व नहीं करना चाहते, हम ये बताना चाहते हैं कि ये सॉल्यूशन किन सेट्स में है। ये सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया, लेकिन अब हमारे पास सेट हमें ऐसा दे दिया जाए जिसमें वो सॉल्यूशन वैलिड ही नहीं है, तो फिर हमारा वो सॉल्यूशन किस काम का। तो हम बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि ये सॉल्यूशन हमारे पास है, लेकिन ये इस सेट में पॉसिबल है, इस सेट में नहीं है। तो अगर हम ऐसा करना चाहें तो ये जो फंडामेंटल चीज़ें हैं ये रिक्वायर्ड हैं उस सेट के लिए। अगर ये फंडामेंटल चीज़ें नहीं होंगी तो उस सेट में सॉल्यूशन नहीं होगा। अच्छा, अब इन्हीं फंडामेंटल चीज़ों को कंबाइन करके हम एक डेफिनेशन मैं आपको दूंगा अभी। वो डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन है ग्रुप की डेफिनेशन। ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है? अब मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम इन दोनों चीज़ों से उसको कंपेयर कर लेंगे और फिर हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है इस डेफिनेशन में। अच्छा, अब हमारे पास ग्रुप की क्या डेफिनेशन होती है? ग्रुप क्या है जी? ग्रुप जो है वो एक सेट है। अब आपने दोनों आपने जो इक्वेशन सॉल्व की इसमें आपने क्या कहा कि हम इन इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन किस सेट में? तो वो एक सेट है ग्रुप, और उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन भी मौजूद है। तो आपको मैंने कहा था कि ग्रुप की डेफिनेशन के लिए हमें इंग्रेडिएंट चाहिए। वो इंग्रेडिएंट क्या है? एक सेट चाहिए और एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एक सेट है और उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है। इन दोनों जो इक्वेशंस की एग्जांपल्स दी उनमें पहले केस में बाइनरी ऑपरेशन एडिशन था, दूसरे केस में बाइनरी ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, अब हमारे पास एक सेट आ गया, एक बाइनरी ऑपरेशन आ गया। अच्छा, अगर हमारे पास ये दोनों चीजें हों तो ग्रुप क्या होता है? ग्रुप को हम लिखते हैं कि हम इस पर्टिकुलर नोटेशन G और बाइनरी ऑपरेशन दोनों को कंबाइन करने के लिए हमने ये नोटेशन दी हुई है कि इस तरह हम ग्रुप को डिनोट करेंगे। तो क्या है? एक ग्रुप जो है वो G है,
एक सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टार। ठीक है, तो हमारे पास कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जो ग्रुप के लिए चाहिए। ये फंडामेंटल चीजें एग्जैक्टली वही फंडामेंटल चीजें हैं जो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए चाहिए किसी सेट में। अगर वो फंडामेंटल चीजें नहीं होंगी तो हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मैं पहले केस में कह रहा हूं जी बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बाइनरी ऑपरेशन के लिए आप जो ब्रैकेट चेंज है वो कर सकते हो। एसोसिएटिव का मतलब यह है कि आप ब्रैकेट चेंज कर सकते हो। जैसे आप एडिशन के केस में मैंने अभी आपको बताया ब्रैकेट चेंज का क्या मतलब है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो सेम होता है x प्लस वाई प्लस जेड के। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव का क्या मतलब है? ये जो स्टार है ये बाइनरी ऑपरेशन है, इसमें ये ब्रैकेट चेंज का जो ऑपरेशन है ये अलाउड होना चाहिए। ब्रैकेट चेंज का जो ऑपरेशन है ये अलाउड होना चाहिए। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए ग्रुप के अंदर या सेट के अंदर जिसमें जब उसको हम किसी भी और एलिमेंट सेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही एलिमेंट आए। अब फिर वही फंडामेंटल चीज है जो मैंने आपको अभी इक्वेशंस के केस में बताई। अगर एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन के केस में हमारे पास वो एलिमेंट जिसको सब नंबर्स में ऐड करें तो आंसर वही नंबर आता है, वो 0 है। ठीक है, तो ये हमारे पास e जो है वो एक ऐसा नंबर है जिसको जब हम x के साथ स्टार बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो आंसर वही नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के केस में e क्या होगा? ये x इंटू 1 जो है वो हमेशा x के इक्वल है अगर आपके पास सेट वेल डिफाइंड हो। ठीक है, तो ये हमारे पास e जो है वो दूसरा फंडामेंटल चीज है जो हमें इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के लिए चाहिए। और तीसरी जो हमारे पास बात है वो ये है कि तीसरी फंडामेंटल चीज जो अभी हमने सॉल्यूशंस के लिए हमने डिस्कस की है वो क्या है कि कोई भी एलिमेंट अगर आप सेट कर लें तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जब आप दोनों का आपस में स्टार ऑपरेशन या बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करें तो आंसर जो है वो आइडेंटिटी या ई आना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? अगर आप एडिशन के केस में देखें तो हमारे पास -x है और x है और आंसर हमारे पास क्या है? आंसर हमारे पास 0 है। और अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन के केस में देखें तो x है और 1 ओवर x है तो हमारे पास आंसर क्या है? 1 है। तो हमारे पास जो जितने भी एलिमेंट हैं सेट के उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट होना चाहिए कि जब उसके ऊपर अपना बाइनरी ऑपरेशन हम अप्लाई करें तो हमारे पास इन द एंड जो है आंसर हमारे पास जो आए वो उस सेट की जो मैं इसको जस्ट कह देता हूँ आइडेंटिटी आए। जैसे एडिशन के केस में 0 आए और मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 आए। अच्छा, अब इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है। एसोसिएटिव होना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन को, मतलब ब्रैकेट चेंज जो है वो अलाउड होनी चाहिए। एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि जब उसका बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें किसी भी और एलिमेंट के साथ तो हमारे पास आंसर वही एलिमेंट x वापस आ जाना चाहिए। ऐसा एलिमेंट e जो है उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। तो आइडेंटिटी क्या है कि जब उसका इफेक्ट जो है किसी भी और एलिमेंट पे वो कोई इफेक्ट नहीं करती, हमारे पास वो एलिमेंट वापस आ जाता है। इसी तरह हमारे पास इनवर्स होना चाहिए। ये सेकंड पार्ट में जो x टू द पावर -1 है इसको मैं हमेशा इनवर्स कहूंगा। तो ये क्या है कि ये खास एलिमेंट है कि ये जब इसके ऊपर इसका बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं x के साथ तो ये सारे इफेक्ट्स को कैंसिल कर देता है, हमारे पास इन द एंड आइडेंटिटी दे देता है हमें। ठीक है, तो ये ग्रुप की हमारे पास डेफिनेशन है। तो ग्रुप क्या है? हमारे पास एक सेट है, उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए और वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होना चाहिए, यानी उसमें ब्रैकेट चेंज का ऑपरेशन जो है वो अलाउड होना चाहिए। और हमारे पास एक आइडेंटिटी होनी चाहिए या ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जब उसको किसी भी और एलिमेंट के साथ उसका बाइनरी ऑपरेशन लें, जैसे सम करें तो एलिमेंट वापस आ जाए, उसको मल्टीप्लाई करें तो वापस आ जाए एलिमेंट। तो एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए
उस सेट के अंदर, और हर सेट के एलिमेंट के लिए एक और एलिमेंट होना चाहिए कि जब उन दोनों का आपस में बाइनरी ऑपरेशन लें तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आए उस सेट की। एडिशन के केस में आइडेंटिटी 0 है, मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी 1 है। तो उस सेट की आइडेंटिटी, ये नहीं कि कोई भी आइडेंटिटी, उस सेट की आइडेंटिटी हमारे पास आंसर आना चाहिए। अब इसमें कुछ मजीद थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं और हम आज का लेक्चर इसमें क्लोज करेंगे। हमारे पास जो ग्रुप है उसमें हमारे पास एक कंडीशन है जी, हमारे पास एक सेट होना चाहिए और एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। अब कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि उसमें बाइनरी ऑपरेशन का क्या मतलब है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये है कि जब दो एलिमेंट्स आप सेट से लें तो उनका आंसर भी उसी सेट में आना चाहिए। तो हो सकता है कि आप कुछ बुक्स में देखें कि आपके पास कुछ इस तरह की डेफिनेशन हो कि G1 स्टार G2 जो है वो भी G के अंदर होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है और बाकी तीनों कंडीशन सेम है। या अगर आप G1 G2 की बजाय X Y लेना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, X स्टार Y जो है वो भी G के अंदर होना चाहिए। अब ये बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन की एक कंडीशन है कि जब भी दो एलिमेंट्स हम लेते हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं ग्रुप का, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और एलिमेंट देता है हमें ग्रुप का। तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑलरेडी हमारी डेफिनेशन में मौजूद है। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स फिर मैं दोबारा लिख देता हूं कि एसोसिएटिव होना चाहिए। X स्टार Y स्टार Z जो है वो हमारे पास होना चाहिए X स्टार Y और स्टार Z, ठीक है। और फाइनली हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए E आइडेंटिटी, जिसको मैं कहूँगा कि उसका जब हम उसको मल्टीप्लाई करें या उसको ऐड करें या कोई भी और बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर वही एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह फोर्थ कंडीशन हमारे पास मौजूद है। तो हम x को जब x इनवर्स जिसको मैं कहूँगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आनी चाहिए, और इसी तरह x इनवर्स को जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर फिर भी आइडेंटिटी आना चाहिए। तो ये हमारे पास ग्रुप की डेफिनेशन है। तो जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इंशाल्लाह हम इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप की डेफिनेशन का मज़ीद जो हमारे पास इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, तो जस्ट एक समरी कि हमने आज के लेक्चर में क्या किया। हमने ये देखा है कि फंक्शन क्या होता है, दोबारा हमने थोड़ा सा डिफाइन किया। हमने सेट की डेफिनेशन भी देखी। फिर हमने कहा कि फंक्शन की एक पर्टिकुलर टाइप है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं जी बाइनरी ऑपरेशंस। वो बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि आपने दो एलिमेंट्स लिए एक सेट के, तो फंक्शन की एक पर्टिकुलर टाइप है कि आपने जो फंक्शन है वो a से b तक होता है, लेकिन इस बाइनरी ऑपरेशन एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन है जिसमें हम दो एलिमेंट्स उसी सेट के लेते हैं और उसको उसी सेट का एक एलिमेंट असाइन करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन दो एलिमेंट्स के ऊपर डिफाइन होता है, हमेशा दो एलिमेंट्स के ऊपर डिफाइन होता है, और उसका आंसर भी उसी सेट में आना चाहिए। तो हमने कुछ बाइनरी ऑपरेशंस भी देखे, जैसे एडिशन इंटीजर्स के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन जो है हमारी इंटीजर्स के ऊपर, ये सारे बाइनरी ऑपरेशन है। फिर हमने कहा कि हमारे पास सेट भी आ गया, बाइनरी ऑपरेशन भी आ गया। तो हमने अपने गोल की तरफ जाते हैं इस कोर्स के कि हमने ग्रुप को डिफाइन करना है। उसको डिफाइन करने से पहले हमने मोटिवेशन कुछ देखी उसकी कि हमारे पास ग्रुप हम क्यों डिफाइन करते हैं। हम ग्रुप इसलिए डिफाइन किया हमने एक मोटिवेशन देखी और आपको मैंने बताया कि ये एक माइनर सी मोटिवेशन है हमारी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट हमारी मोटिवेशन है ग्रुप को स्टडी करने के लिए। तो वो इंशाल्लाह हम जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे जाएगा हम उसको देखेंगे। तो हमारे पास
क्या है, हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, लेकिन हम इक्वेशंस को सॉल्व करते आए हैं और उसमें हमने क्या किया था, ये इक्वेशन है, इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट किया और हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये आंसर जो है वो किसी अगर हम किसी पर्टिकुलर सेट की बात करें तो उसमें ये सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो आज हमने देखा कि जब तक कुछ खास चीज़ें, कुछ फंडामेंटल चीज़ें उस सेट के अंदर मौजूद नहीं होंगी तो हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो वो फंडामेंटल चीज़ें क्या हैं, वो फंडामेंटल चीज़ों को हमने इकट्ठा किया और एक सेट के साथ उसको असाइन कर दिया कि हम जब भी हमारा एक सेट होगा और उसके अंदर एक बाइनरी ऑपरेशन होगा और वो फंडामेंटल चीज़ें जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए वो सारी उसके अंदर मौजूद होंगी तो उसको हम ग्रुप कहेंगे। तो ग्रुप की हमने डेफिनेशन देखी, तो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम ग्रुप की डेफिनेशन को मज़ीद थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और हम इसमें इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे कि ग्रुप्स क्या होते हैं, कहाँ होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ग्रुप्स बनाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें ग्रुप्स नहीं बनाती। तो जब हम आपको एग्जांपल्स देंगे उसके बाद ये आप इजीली एनालाइज कर सकेंगे कि लीनियर इक्वेशंस किन सेट्स में हम सॉल्व कर सकते हैं, किन में नहीं कर सकते। तो प्रिसाइजली लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन उन सेट्स के अंदर मौजूद होगा जो सेट्स ग्रुप्स होंगे। तो इंशाल्लाह हम ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।